Yes, good morning everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your history teacher, and today we are going to continue the same chapter, Europe. Okay, so but first of all, this is a time for recapitulation. So let me check few students whether you know that what we have done 2 days before and from which page, which topic we are going to read today. Harjot, unmute yourself, beta. What we have done earlier. Good morning. What we have done earlier. Ma'am, we have done the page number 17, 1848, the Revolution of Liberals, and we have done till page number 18. We have to start from page number 19, the making of Germany and Italy. Chalo. Thank you very much, Harjot. Now listen, today we will do one question only, 5 marks. But this question is not important. This question is very, very, very important. अब सबसे पहले आप अपने हाथ से यहीं पर लिखो. क्वेश्चन नहीं. Here please write very, very, very important. लिखवाती नहीं हूं मैं कभी. But you will write today because this question is really very, very important. ये आना ही आना है. Set 1, Set 2, Set 3 कहीं भी, but this question will definitely come in your exam. हाँ जी, cameras on. आराधना, अरमान. हाँ जी, now we have done Europe. Okay, important countries of Europe, right? And today we are going. फ्रांस हमने पढ़ लिया था. Even grade 9 में भी आपने थोड़ा फ्रांस पढ़ा, right? So now we are going to do जर्मनी. आज जर्मनी चलेंगे. 15 मिनट में हम जर्मनी घुमाएंगे. Okay, this question carry 5 points with 5 headings. First of all, you will read and I will explain to you each and every point. ये मेरी बात सुनो. एक क्वेश्चन को आज अच्छे से समझ लेना, because this question is very, very important. Otherwise, okay. So Germany's unification. अब सबसे पहले let me clear the heading first, because if you will clear the heading now, then you will be able to know कि आज हमने पढ़ना क्या है. नहीं तो कुछ नहीं पता चलेगा. यूनिफिकेशन क्या होता है वही नहीं पता चलेगा. हाँ जी, वर्णित और अक्षित, कैमरा ऑन. So the title Harjot has read the making of Germany and Italy, but today we will not do Italy. We will do only and only Germany. जर्मनी का मेकिंग कैसे हुआ था, कैसे जर्मनी बना था, what was the earlier condition of Germany and what was the steps of the unification and who became the king finally. राजा कौन बना था जर्मनी का. Germany's unification is as equal to, you can say, the independence of India. For example, as the independence of India was important at the time before 1947, in the same sense, Germany's unification was very, very important at the time of 1848. 100 साल पहले की बात है. जो 1947 में हमारा सपना था, वो 1847 में जर्मनी का सपना था. Not to independent, to be unified only, because the country Germany was broken into pieces. छोटे-छोटे टुकड़ों में बटा था. Different kind of rulers, different kind of leaders in different kind of areas. The thing was that the condition of Germany was pathetic. The people were suffering with the government. They were unhappy with the government. They were unhappy with the rules. So the condition of Germany was pathetic. Painful condition थी people के लिए. तो टूटे हुए जर्मनी को जोड़ना इनका सपना था. ठीक है. तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज द ड्रीम ऑफ द पीपल ऑफ जर्मनी. नाउ शो मी थम्स अप इफ हेडिंग इज क्लियर टू यू कि हमने पढ़ना क्या है. थैंक यू हरलीन, हरजोत, दक्ष, कशिश, यादविंदर, विक्रम, अर्शिया, वरुण. चलो, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, ये लास्ट स्टूडेंट प्लीज कैमरा ऑन. अरमान, अरमान कैमरा ऑन बेटा. अरमान चीमा फर्स्ट डे आज क्लास लगा रहा है, तो यू नो आई गॉट योर अटेंडेंस. कैमरा ऑन अरमान चीमा.
Arman Chima, unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning, Arman. This is your first class, you know. Yes, ma'am. And Sorry, ma'am. You have missed 18. Sorry की बात ही नहीं है. You have missed 18 pages. Such a great loss. Half chapter gone, you know. Half chapter gone. Reason for absence. क्या हुआ था अरमान? Internet issue was there. नहीं. This is a fake. Slow था बहुत slow था मैम. इतने दिन यहाँ भी कईयों का मैम पता इंटरनेट स्लो है. यहाँ भी कईयों का इंटरनेट स्लो है. मुझे पता चल रहा है. उनका ब्लर जा रही है. मैम एयरटेल की रेंज नहीं आती मैम मुझे. Don't miss any class further. Right? Okay. Thank you. हाँ जी. जर्मनी. कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन? आपको लगता है कि कभी आर्मी भी देश बना सकती है? क्योंकि देश तो बनाती है गवर्नमेंट, सरकार, प्राइम मिनिस्टर, अथॉरिटी, मैनेजमेंट. बट क्या कभी आर्मी भी देश बनाती है? नाउ हियर वी विल रीड द रोल ऑफ आर्मी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. आर्मी ने इतना बड़ा रोल प्ले किया कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया. जर्मनी देश जुड़ गया जो पहले टूटा हुआ था. राइट. चलो. हर्षप्रीत सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ. स्टार्ट रीडिंग बेटा. जर्मनी. गुड मॉर्निंग. स्टार्ट रीडिंग बेटा. After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by... We will read only one line. ये मेरी आदत है. You will stop after every full stop. ठीक है. आज पूरे दिन में हमने सिर्फ एक पेज पढ़ना है, 19 पेज. सिर्फ एक क्वेश्चन करना है 5 मार्क्स का. तो आराम से पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाए. ओके. After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. 1848 के बाद people were aware. Now they want democracy. Now they don't need any kind of dictatorship. अभी जो आपने पढ़ा, हर्षप्रीत ने पढ़ा कि एसोसिएशन ऑफ रेवोल्यूशन की तरफ चल पड़ी थी. Now they don't need monarchy. हाँ जी हर्षप्रीत बेटा, you have to stop after every full stop. ठीक है. एक एक लाइन मुझे क्लियर कर दीजिए. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. चलो. नेशनल सेंटिमेंट ऐसे थे, नेशनल फीलिंग्स ऐसी थी, मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर. कंजर्वेटिव कह रहे थे स्टेट पावर को. कंजर्वेटिव कौन से लोग? दोज हु गिव प्रेफरेंस टू द ट्रेडिशंस, देयर कल्चर, देयर कस्टम्स. मोनार्की, मोनार्कियल इंस्टीट्यूशन, वो उनको प्रेफरेंस दे रहे थे कि वो स्ट्रांग होनी चाहिए. एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप. पूरे यूरोप पर मोनार्की, किंग और क्वीन का डोमिनेंस हो जाए. पर ऐसा बाकी सब लोग नहीं चाहते थे. यादविंदर, कौन लोग नहीं चाहते थे? कौन लोग नहीं चाहते थे कि मोनार्की आए? मैम जर्मनी पीपल. वो कौन से लोग थे जर्मनी के? ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स? क्या हो गया? क्लासेस तो तूने वैसे मिस करी नहीं है इतनी. यार दो तरह के तो लोग थे. एक कंजर्वेटिव थे जो यूरोप में चेंज नहीं लाना चाहते थे. दूसरे वो थे. अभिजीत, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम लिबरल. हाँ लिबरल थे. वेरी गुड, थैंक यू अभिजीत. तो लिबरल वांट्स लिबर्टी, दे वांट रेवोल्यूशन. थैंक यू अभिजीत. तो लिबरल जो थे वो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, बट जो कंजर्वेटिव थे वो पूरे के पूरे यूरोप पर मोनार्की चाहते थे. हाँ जी हरजोत, आगे पढ़ो बेटा. हरजोत नहीं, हर्षप्रीत, कंटिन्यू बेटा. This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. ठीक है. तो फिर ऐसे देखा गया, ऐसे प्रोसेस के साथ कि किस तरह जर्मनी और इटली यूनिफाइड. इटली नहीं पढ़ाऊंगी आज, सिर्फ जर्मनी पढ़ाऊंगी कि किस तरह जर्मनी यूनिफाइड हो गया. हाँ हर्षप्रीत. As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle-class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation-state governed by an elected parliament. चलो, एक पार्लियामेंट बन गई थी 1848 में, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, आपको याद होगा.
सेंट पॉल चर्च में, ठीक है। ये आपको मैंने फोटो भी दिखाई थी, पेज नंबर 18 में आप देख रहे हो। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी चर्च में, यहाँ पर यूनिफिकेशन का सोचा था, इन्होंने ट्राई करा था बट हुआ नहीं था। अच्छा, एक लाइन हर्ष ने पढ़ी है इसमें कि फीलिंग्स वाइड स्प्रेड मिडिल क्लास जर्मन में पैदा हुई थी सबसे पहले फीलिंग्स। ये मिडिल क्लास पीपल कौन थे? हर्ष ने पढ़ा मिडिल क्लास में ये फीलिंग सबसे पहले पैदा हुई। तो मिडिल क्लास पीपल कौन थे? रेज योर हैंड्स। हाँ जी, वेरी गुड। अभिजीत अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। मैम कॉमन पीपल, आर्टिशियंस एंड फार्मर्स, हरजोत। peasants. Ma'am, middle class people were the educated people like professionals, lawyers, businessmen, etc. इशू। Ma'am, middle class people were the educated middle classes, which you told us, who were lawyers and officers, etc. ठीक है बेटा। सो मिडिल क्लास पीपल में सबसे पहले नेशनलिस्ट की फीलिंग्स आई थी कि वो देश को यूनिफाइड करेंगे, ठीक है। चलो, बड़े लिखे लोग थे वो, पढ़े लिखे लोग ही क्रांति लाते हैं। अभिजीत लोअर हैंड बेटा। अक्षित ठाकुर वीडियो ऑन। हाँ जी हर्ष कंटिन्यू बेटा, उसके बाद क्या हुआ? This liberal initiative to nation building was, however, repressed by a combined forces of monarchy and the military, supported by the large landowners called Junkers of Prussia. चलो जी, बट हुआ नहीं कुछ भी। बेचारों ने कोशिश करी लेकिन उसको सप्रेस कर दिया गया। किसने? मोनार्की ने। प्रशिया के पीपल ने, जंकर्स होते थे, उन्होंने इसको दबा दिया और मोनार्की जीत गई। तो जो पहला ट्राई हुआ था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, उससे कुछ नहीं बना जर्मनी का, वो फेल हो गया। हाँ जी हर्ष। From then on, Prussia took on the leadership of movement for national unification. Its chief minister Otto von अब प्रशिया आ गया। आपको पता है ना, प्रशिया काफी पावरफुल कंट्री था, इसी ने नेपोलियन को हराया था। और नेपोलियन को हराने के बाद वियना में बैठकर इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे और उसमें प्रशिया को बहुत बड़ा एरिया मिल गया था। प्रशिया बिकेम मोर स्ट्रॉन्ग देन बिफोर। अब प्रशिया ने इसका टुक ओवर किया है, इसका इनिशिएटिव लिया है कि वो जर्मनी के लिए कुछ करेगा। अब रशिया तो पहले पावरफुल था, आर्मी सबसे बढ़िया थी, तो रशिया ने ये वाला काम इनिशिएटिव, ठीक है। सुनाओ। हाँ जी वरुण भट्टी, रीड फर्दर बेटा। वरुण भट्टी अनम्यूट योरसेल्फ। Otto von Bismarck was the architect of the process carried out with the help of Prussian army and Yes, अब प्रशिया ने इसका कवर किया है और प्रशिया ने किसकी हेल्प ली है? प्रशियन आर्मी की, क्योंकि प्रशिया की आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। दूसरी किस चीज की हेल्प ली है? ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? आर्मी तो आपको पता होगा। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? What is bureaucracy? Raise your hands. I know the answer. What is bureaucracy? Waiting for others. दो डिपार्टमेंट ने हेल्प की थी प्रशिया की। वन वाज पर्शियन आर्मी, दूसरा वरुण ने पढ़ा ब्यूरोक्रेसी। आर्मी तो यू नो मिलिट्री, आर्मी फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी? ये क्या होता है? इशू। हायर रैंक ऑफिसर्स। हाँ, हायर रैंक ऑफिसर्स मींस दोज हु मेक रूल्स, उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। सो दो लोगों ने मदद की थी, दो डिपार्टमेंट्स ने। वर्णित अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने जितना पढ़ाया पहले उतना पूछ लूं मैं। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग वर्णित माय डियर। बेटा किसका यूनिफिकेशन हो रहा है? Ma'am, Germany. ठीक है। सबसे पहले किसने कोशिश करी हुई है? वो फेल हो गया।
इसने हिंट ले लो। The people of Germany architects. नहीं, इसने कोशिश करी थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, ये फेल हो गया। अच्छा, फिर किसने कोशिश करी? Actually, ma'am, I have network problems. नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। I was not able to hear. ओके, आराधना अनम्यूट योरसेल्फ। हरलीन अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. अच्छा बेटा, किसने कोशिश करी है जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तो वर्निक ने बोला फेल हो गया। फिर मैम जो मिडिल क्लास पीपल थे। कहाँ के, किस कंट्री के? अभी तो बताया मैंने कौन सा कंट्री पावरफुल था। रशिया। आशिया अनम्यूट योरसेल्फ। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। विच कंट्री हेल्प्ड? Ma'am, Persia. रशिया। उसने किसकी हेल्प ली? Persia ने ma'am armies. And Kashish, unmute yourself. Ma'am, Prussia's army and bureaucracy. ठीक है, इनकी हेल्प ली। वेरी गुड। नाउ रीड फर्दर बेटा। Who was reading? अक्षित ठाकुर, where are you? बेटा कैमरा ऑफ। चलो कशिश कंटिन्यू बेटा। उसके बाद फिर क्या हुआ? रशिया की आर्मी आ गई जी। He wars over 7 years with Austria, Denmark, and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. चलो जी, अब इसके बाद क्या हुआ? ऑटोवन बिस्मार्क आ गया, वो चीफ मिनिस्टर था। रशिया की आर्मी की हेल्प ली उसने और 3 कंट्रीज के साथ 7 इयर्स तक वॉर चली। कशिश ने पढ़ा डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, और इस लड़ाई में कशिश ने बोला प्रशियन विक्ट्री, रशिया जीत गया और इस तरह जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। कशिश किंग कौन बना? पढ़ दे बेटा लास्ट लाइन। हु वाज द किंग? In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German Empire. He held at Versailles. Versailles, name of a place, Versailles. जर्मनी में एक जगह का नाम है। तो वहां पर विलियम वन को, जो कि प्रशिया का किंग था, उसको जर्मनी का राजा बना दिया गया और इस तरह जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब जिस दिन वो राजा बना था ना, यू नो, बीइंग द किंग इज अ ग्रेट सेरेमनी। राजा को क्राउन पहनाना, महल में जाकर बहुत बड़ी सेरेमनी होती थी। अब ये सेरेमनी इशू पड़ेगी। इशू क्या था? उस दिन बड़ी ठंड थी, 18 जनवरी में ठंड होती ना। हाँ, 18 जनवरी 1871। इशू पढ़ो बेटा, क्या हुआ था उस दिन? On the morning of January 1871, an assembly comprised of the German states, representatives of the army, important Russian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the place of Versailles to proclaim the new German Empire, headed by Caesar William I Persia. हाँ जी, उस दिन क्या था? 18 जनवरी 1871 को असेंबली में, जहां पर जर्मन के राजा थे, राजा लोग, प्रिंसेस तो होंगे ही ना, वहां जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा है, तो वो लोग थे, साथ में आर्मी के लीडर्स थे और इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। ऑटोवन बिस्मार्क भी था, जो चीफ मिनिस्टर था वो भी था, और ये सब इकट्ठे होके हॉल ऑफ मिरर्स में, मतलब बहुत बड़ा हॉल था। आप फोटो में देख रहे हो, ये है हॉल ऑफ मिरर्स। कैन यू सी हियर? हॉल ऑफ मिरर्स। यहाँ सब इकट्ठे हुए और कैसर विलियम वन को क्राउन पहनाया गया और वो राजा बन गए। हाँ जी, इशू। उसके बाद क्या हुआ? राजा बनने के बाद जर्मनी का क्या हुआ? प्लीज रीड। नेशन बिल्डिंग
The nation building process in Germany had demonstrated the dominant state power. चलो जी, अब जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद ऑब्वियसली जिस कंट्री ने हेल्प की वही डोमिनेंस करेगा। हेल्प कौन से कंट्री ने करी थी वरुण भट्टी? विच कंट्री हेल्प्ड? प्रशिया। हाँ जी, तो प्रशिया का ही डोमिनेंस था, जर्मनी वही करता था जो प्रशिया कहता था। हाँ जी, फिर प्रशिया ने क्या कहा और जर्मनी में क्या चेंजेस आए? इशू पढ़ो बेटा। The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal, and judicial Germany. ओके, तो न्यू स्टेट में मॉडर्नाइजेशन ऑफ करेंसी हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, लीगल और जुडिशियल सिस्टम जर्मनी में वही हुआ जो प्रशिया में था। लास्ट लाइन पढ़ो इशू। Persian measures and practices often became a model for the rest of Germany. चलो, जो प्रशियन की प्रैक्टिसेस थी वही कुछ जर्मनी में होता था, बिकॉज प्रशिया हेल्प ना। अब आप दो मान लो, टू फ्रेंड्स आर फाइटिंग विद ईच अदर एंड द थर्ड वन हेल्पिंग द फर्स्ट वन। एक्स और वाई की लड़ाई हो गई है एंड वन जेड पर्सन इज हेल्पिंग एक्स, तो एस उस पर डाउन हो जाएगा और वाई जेड जो है जिसने हेल्प करी है एक्स पर डोमिनेट करेगा, तो जेड जो बोलेगा एक्स वही करेगा। तो अब जो प्रशिया कहेगा जर्मनी वही करेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस प्रशिया हेल्प जर्मनी। तो सारा प्रशिया का सिस्टम जर्मनी में हो गया। इन दिस हाउ जर्मनीज यूनिफिकेशन वाज कंप्लीटेड। तो यू हैव टू राइट 5 स्टेप्स विद 5 हेडिंग्स। क्वेश्चन वाइंड अप मैं करवाऊंगी आपको, बट नॉट टुडे। Today you have read the question, you have cleared the question. Your homework only revise this question. Tomorrow we will wind up this question with headings and आप मेरे सामने कॉपी पे लिखोगे। Okay? Right, beta? Now take 30 seconds for reading this page number 19, and I am going to ask some of the questions. कुछ नहीं लिखना आज कॉपी पे। 30 seconds लो, read this page number 19. Ten seconds more. चलो, टाइम ओवर। नाउ आई विल आस्क 5 क्वेश्चन टू 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया। जसकरण, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। जसकरण, किसका यूनिफिकेशन हो रहा है? जर्मनी का। अच्छा, सबसे पहले किसने ट्राई करा था? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, क्या वो कर पाई यूनिफिकेशन जर्मनी का? नो मैम। अच्छा, चलो, थैंक यू जसकरण, थैंक यू बेटा। आराधना का तो मुझे लगता है नेटवर्क नहीं ठीक है। वरुण, अनम्यूट योरसेल्फ। जसकरण ने मुझे बोला कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने ट्राई किया बट हुआ नहीं उससे यूनिफिकेशन। उसके बाद फिर कौन आगे आया? मैम मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास फ्रॉम विच कंट्री? मैम जर्मनी। ठीक है, तो इसने किसकी हेल्प ली? जर्मनी ने। वेरी गुड।
रशिया। रशिया की हेल्प ली। अच्छा लास्ट क्वेश्चन बता दे वरुण, चीफ मिनिस्टर कौन था? देख के पढ़ दे, नाम देख के पढ़ दे वरुण, चीफ मिनिस्टर का नाम लिखा है वहां पर। ओटो वोन। हाँ, ऑटो वन बिस्मार्क। ओटो वोन बिस्मार्क। ठीक है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट विक्रम जी, अनम्यूट। विक्रम, प्रशिया ने किसकी हेल्प की? इतना बड़ा काम करने लगा प्रशिया। जर्मनी। हाँ, जर्मनी की हेल्प करी थी। प्रशिया ने किन दो डिपार्टमेंट्स को अपने साथ लिया? मैम एक आर्मी और एक ब्यूरोक्रेसी। वेरी गुड, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को हेल्प करी, ठीक है। अच्छा, फाइट चली थी, वॉर चली थी विक्रम, कितने साल तक? पढ़ाया मैंने अभी आपको 7 इयर्स तक, ठीक है। अच्छा, 7 इयर्स तक वॉर चली थी, है ना। विच 3 कंट्रीज? हरजोत, विच 3 कंट्रीज? मैम ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ठीक है। अच्छा, एंड क्या हुआ फिर? जर्मनी का कुछ बना के बेचारा रह गया हरजोत? Could you please repeat? बेटा, what was the result of the wars, 7 wars? Ma'am, Prussia won. हाँ, Prussia won. And Germany was unified. And Germany was unified. Who became the king of Germany? Ma'am, William won. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच हरजोत, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपको क्लियर हो गया। लास्ट स्टूडेंट अरमान चीमा। अच्छा, नाउ यू प्लीज टेल मी कि कहां पर क्राउन पहनाया राजा को? हरजोत ने राजा बोल दिया, क्राउन कहां पर पहनाया गया? टेल मी द सेरेमनी कैसी थी, कहां पर हुई थी सेरेमनी? अरमान चीमा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ, थोड़ा सेरेमनी बताना। पेज नंबर 19, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, फोटो भी दी है, कहां पर क्राउन पहनाया, क्या था सारा सिस्टम, दिन क्या था? I have given you hint. Second last paragraph. Yes. यादवीर मैम। यस मैम। हाँ, यादवीर बोलो फिर क्या हुआ था जब वो राजा बना, उस दिन क्या हुआ? मैम, कहाँ पर सेरेमनी, क्या हुआ वहां पर? हॉल ऑफ मिरर्स में सेरेमनी थी। When? Can you tell me the date and year? 18 जनवरी 1871। ठीक है, ठीक है, ओके। अर्शिया, अनम्यूट योरसेल्फ। नेम ऑफ द किंग? William won. चलो, thank you very much. Now you have understood the topic. Tomorrow we will wind up and you will write the question in your copy. Thank you very much. I am going to end up the class. Thank you so much, beta. God bless you, beta.